Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my YouTube channel. So as you have already seen from the title, I will be solving questions from the chapter Atomic Structure. And if you're new to my channel, please take a moment to like, share and subscribe, and please smash the bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial you get notified. And also, if you like this video, please watch it till the end and give it a big fat thumbs up and forward it to as many people as you can. Okay, that was all about my subscribe thing and all. Let's begin with solving the questions. First question is, what is work function of metal if light of wavelength 4000 angstrom generates photoelectron of velocity 6 into 10 to the power 5 meter per second from it? Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Planck's constant, which is h, is equals to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule per electron volt. Okay, so basically in this you have to calculate the work function. ठीक है, तो इसका बेसिकली डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ, इट इज़ गिवन इन NCERT. सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस, मेनली क्वेश्चंस आर either graph wise or numerical oriented, so you make it sure that you go through the formulas really well, so it becomes easier for you to directly put the formula. And sometimes it's not given directly, I mean the formula is not given directly, then you have to rearrange it here and there and solve it according to the question. So for the first question we need to calculate the work function. तो जो वैल्यू हमें पहले दी हुई है we'll note it down. Okay, so this is the first question, and mass of electron is given, velocity is obviously constant, Planck's constant is also given, charge of electron is given. So we know half mv square is equals to h nu minus h nu naught. ठीक है, now this h nu naught obviously we know is denoted by phi. This is called as the work function. ठीक है, so this value we have to calculate, you need to calculate the work function. ठीक है, now जो वैल्यू दी हुई है, now I'll first write it in more simplified way. Half mv square is equals to h nu minus phi. This is the work function. तो I'll write it here so that I get a bigger space to solve the numerical. Half mv square is equals to h nu minus phi. This phi is the work function. ठीक है, now हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू विच इज़ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है. तो मीटर में कितना होगा, वी नो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 10 मीटर. रिमेंबर दिस इफ यू डोंट, like if you have forgotten, 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. तो 4000 angstrom is 4000 into 10 to the power minus 10 meter. ठीक है, now velocity दी हुई है 3 into 10 to the power 8 meter per second. और what else is given, photo electron of velocity. Okay, so basically आपको क्या करना है, इसमें जो वैल्यू दी है पहले वो लिख लेते हैं. 6.6 ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, c की वैल्यू है विच इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ठीक है, एंड ऑल्सो द फोटो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी दिया हुआ है, कितना है 6 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, सो बेसिकली यू नीड टू पुट इट नाउ. अब हाफ, ये हाफ m मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v स्क्वायर मतलब कि फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, और ये h न्यू विच इज़ hc बाय लैम्डा. ठीक है, वो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पुट करना, एंड दिस यू हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, तो ये वैल्यू जो मैं लिखी हुई हूँ यहाँ पे, वी नीड टू पुट इट वन बाय वन. सो आई एम जस्ट इरेजिंग इट वंस. हाफ 9.1 into 10 to the power minus 31 v स्क्वायर मतलब कि फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी यहाँ पे 6 into 10 to the power 5 का स्क्वायर. h न्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ hc बाय लैम्डा, h न्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ hc बाय लैम्डा. ठीक है, तो यहाँ पे 6.626 into 10 to the power minus 34. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 into 10 to the power 8 लैम्डा. 4000 into 10 to the power, सिंस यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया था, मीटर में 10 to the power minus 10.
-5, ठीक है। ये वैल्यू आपको ऑब्वियसली फिजिकल का क्वेश्चन, इट विल बी वेरी कैलकुलेटिव। तो ये क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ -31, 36 इंटू 10⁻10, ये 6 का स्क्वायर और 10⁻5 और ये यहाँ पे 2 होता है, तो ये दो नंबर जो वैल्यू दी हुई है दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देन क्या आएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये वैल्यू 6.626 बाय 4 इंटू ये 4000 है, तो मैं 10⁻³ लिख सकती हूँ इंटू 3, और ये 10⁻−34 इंटू 10⁻8, तो ये 10⁻−34 प्लस 8 आ जाए होगा जो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -26, ठीक है। ये है 10⁻−10। नाउ यहाँ पे और ये -5, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 5 की वैल्यू। नाउ क्या आ गया फिर 9.1 इंटू 10⁻−31, ये 10⁻−31 और ये 10⁻10, तो ये +10, ठीक है, इंटू 36 डिवाइडेड बाय 2, 6.626 डिवाइडेड बाय 4, ये इंटू 3, 10⁻−26, ये 3 और ये -10 -7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -7 जब ऊपर जाएगा तो ये ऑब्वियसली +7 हो जाएगा, -7, ठीक है। देन ये यहाँ पे और -5 है, ठीक है। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस 9.1 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 2, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नाइन 9.1 इंटू 36, तो ये आ जाएगा 327.6 डिवाइडेड बाय 2, और ये 10⁻−21, ठीक है। अब ये वैल्यू 6.626 इंटू 3, 19.87 डिवाइडेड बाय 4, 19.87 डिवाइडेड बाय 4, 4.96 इंटू ये 10⁻, हो जाएगा कितना 26 -7 विल बी -19, ये -5, ठीक है। नाउ 327.6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 163.8, 163.8 इंटू 10⁻−21 इज इक्वल्स टू 4.96 इंटू 10⁻−19 -5, ठीक है। नाउ ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये मैं इधर ले जाती हूँ 5 इज इक्वल्स टू 4.96 इंटू 10⁻−19 -163.8 इंटू 10⁻−21, ठीक है। अब ये बेसिकली अगर मैं 10⁻−19 के टर्म्स को इसको ये वाले वैल्यू को लिख सकती हूँ कैसे, 5 इज इक्वल्स टू 4.96 इंटू 10⁻−19 -1638 बाय 10, मैं एक एक स्टेप करके बताती हूँ, -21, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 20 लिखूँ तो यहाँ एक 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 19 लिखूँ तो यहाँ पे एक और नीचे 0 आएगा। देन कितना आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी फिर 5 इक्वल्स टू 4.96 इंटू 10⁻−19 -123 -1.63 इंटू 10⁻−19, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। नाउ 4.96 -1.63 और ये 10⁻−19 ऐसे। नाउ लेट्स सब्सट्रैक्ट इट, 4.96 माइनस 1.63, तो ये आ रहा है 3.33 इंटू 10⁻−19 जूल, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो वी नो कि यहाँ पे वी नो 1 जूल इज इक्वल्स टू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, सिंस यहाँ पे ऑप्शंस में सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. तो 3.3 इंटू 10⁻19 इंटू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब ये हमें मल्टीप्लाई करना होगा. ये 10⁻19 और 10⁻18 ये 10⁻1 हो जाएगा ना. 3.3 इंटू 6.2 तो ये 20.64 ये आ रहा है ना. और 20.64 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. क्या आया है ये 20.64 इंटू 10⁻1. ठीक है ना, बाय 3 0 कैसे आया, ये इसका 2, ये 0.64 2, ये इसके लिए. ठीक है, तो ये 123 मतलब कि 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जो ऑब्वियसली थोड़ा क्लोज टू वैल्यू एग्जैक्ट, तो ये 2.06 है, क्लोज टू वैल्यू है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. सो इट वॉज अ लिटिल लेंथी ऑब्वियसली, क्योंकि कैलकुलेशन है. तो आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगो क्वेश्चन, इट विल बिकम अ प्रो इन दिस, सो डोंट वरी एट ऑल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A stream of electron from a heated filament was passed between two charged plates kept at potential difference V, SU. If E and M are charge and mass of an electron, what is the value of H by lambda? Okay, तो यहाँ पे बोल रहा है कि there is stream of electron from a heated filament which is passed through two different charge plates which are kept basically at a potential difference of V. और E और M, E जो है वो है charge and m is the mass of electron, then you have to calculate the value of h by lambda. ठीक है, तो ये क्वेश्चन h by lambda अगर आपको कैलकुलेट करना है, यू विल ऑब्वियसली प्रोसीड विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन. ठीक है, वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p. ठीक है, लैम्डा इज वेवलेंथ, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, p इज मोमेंटम विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. नाउ वी कैन ऑल्सो राइट इट एज p इक्वल्स टू h by lambda. कुछ नहीं किया, इसे यहाँ ले गया, इसे यहाँ. ठीक है, देन kinetic energy of an electron is, then we also know kinetic energy is equals to half mv square or p square by 2m. ठीक है, then ये भी kinetic energy, ये भी kinetic energy है, तो ये क्या हो जाएगा p square by 2m. ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे यहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा 2m/eV. तो p की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू. ठीक है, एंड ऑल्सो आई हैव व्हेन आई लाइक स्टार्टेड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई हैव सेड कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p, p इज इक्वल्स टू h by लैम्डा. ठीक है, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर. h by lambda is equals to this. So this is the value of h by lambda. ठीक है, that means C is the correct option. So in this way it will be solved, basically rearrange करके equation को here and there. So just go through the formula once again really well from all the physical chemistry chapters, be it solid state or some basic concepts of chemistry, more concept. I've already solved many questions from that chapter. If you haven't seen my video, you can go and check it out in my YouTube channel. Okay, I keep promoting my videos in middle of the this series, revision series. So if you like it, please do like, share and subscribe. Okay, next question.
द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेसिकली चार इलेक्ट्रॉन्स के बेसिकली डिफरेंट क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं। देन यू हैव टू प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली इंक्रीजिंग एनर्जी का अगर आपको ऑर्डर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे भी ऑलरेडी नो कि बेसिकली n+l वैल्यू से हम एनर्जी का ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर n+l की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम होगी, और अगर दो सब ऑर्बिट्स के सेम वैल्यू ऑफ n+l है तो जिसका n जो है छोटा होगा, मतलब जो लोअर वैल्यू होगी, दैट विल हैव द लोअर एनर्जी कंपेरेटिवली। सॉरी। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट वाले के लिए मैं n+l की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा n+l 4+2 दैट मीन्स 6। सेकेंड वाले के लिए 3+2 ये हो जाएगा 5। नाउ फॉर द थर्ड वन विच इज़ n+l, n की वैल्यू है 4, l की वैल्यू है 1। फोर्थ वाले में 3+1 ये 4, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l स्मॉलर विल बी द एनर्जी, ठीक है। तो सबसे जो कम वैल्यू है किसकी है, फोर्थ वाले की, तो इसकी एनर्जी बेसिकली सबसे कम होगी। ना यहाँ पे अगर आप देखोगे अब सेकेंड और थर्ड में सेम वैल्यू ऑफ आ रहा है n और n+l का। व्हाट आई सेड, इफ देयर आर बेसिकली सब ऑर्बिट्स विच हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+l, द वन विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। तो ये जो सेकेंड और थर्ड है इसमें लोअर n की वैल्यू है सेकेंड वाले की, दैट मीन्स सेकेंड की एनर्जी कम होगी, फिर होगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है n+l की। तो आई राइट इट हियर, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l लेसर इज एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स द लोअर वन विल हैव टू बी placed first, then you have to go it in like for increasing order, like from lower one and then the highest one। तो ये ऑर्डर क्या आ गया, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट की सबसे ज़्यादा है, फोर्थ, सेकेंड, दैट मीन्स सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन, ठीक है। ओके, सो इट वॉज ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fourth question is, if de Broglie wavelength of electron in nth Bohr orbit in a hydrogenic atom is equals to 1.5 a0 is Bohr radius, then value of n by z is, ठीक है। तो यहाँ पे basically you have to calculate the value of n by z, and there is a de Broglie wavelength in nth orbit, Bohr orbit, in which Bohr orbit in a hydrogenic atom basically which is equal to 1.5 a0, ठीक है। वेवलेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है, मतलब कि लैम्डा, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 1.5 a0, ठीक है। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस बाय wavelength। Basically this is the method, basically calculative one, in which you can calculate the number of waves। कैसे नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करोगे, जो टोटल सर्कमफेरेंस है डिवाइडेड बाय इट्स वेवलेंथ, ठीक है। तो उससे नंबर ऑफ वेव्स जो कि n है, इट विल बी कैलकुलेटेड। सर्कमफेरेंस बेसिकली क्या होता है, वैल्यू उसका क्या होता है 2πr। वेवलेंथ की वैल्यू आपको पता है लैम्डा, दिस इज n विच इज़ नंबर ऑफ वेव्स। नाउ 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा में भी लिख सकती हूँ, ये लैम्डा यहाँ चला गया, ठीक है। नाउ वी नो रेडियस ऑफ एन एटम का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू a0 n स्क्वायर बाय z, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप r की वैल्यू जो हमें पता है वो पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हमने क्या निकाला था बेसिकली 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो ये 2πr की वैल्यू a0 n स्क्वायर बाय z इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ये आ गया। नाउ ये n और ये कट जाएगा, 2πa0 बाय z इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 a0, और हमें ये वैल्यू बेसिकली किसकी कैलकुलेट करनी है, ओके सॉरी यहाँ पे एक n भी है, आई फॉरगॉट दैट, आई एम रियली सॉरी, दिस n, ये बेसिकली n स्क्वायर है, तो एक n की वैल्यू n बाय z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये n बाय z इंटू 2πa0,
ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे, ठीक है ना। ये n बाय z इज इक्वल्स टू 1.5 ए नॉट बाय 2 पाई ए नॉट कैंसिल हो जाएगा. देन what आर वी लेफ्ट विथ, वी हैव n बाय z इक्वल्स टू 1.5 बाय 2 पाई. पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14. तो n बाय z 1.5 2 इंटू 3.14. n बाय z इज इक्वल्स टू 1.5 बाय 6.28. नाउ 1.5 okay, I'm really sorry, I think there's a correction over this question because this de Broglie wavelength is 1.5 pi a naught, ठीक है. तो ये basically I'll solve it again, just a minute. Okay, so I'll solve it again, I'm so sorry. Basically there was this, I actually skipped this pi. I'm so sorry. Okay, तो ये लैम्डा है 1.5 पाई ए नॉट, ठीक है. तो हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. ओके, आर की वैल्यू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू एन लैम्डा. नाउ ये एन 2 पाई ए नॉट एन बाय जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 1.5 पाई ए नॉट. ये पाई ए नॉट कैंसिल हो गया. देन n बाय z इज इक्वल्स टू 1.5 बाय 2. तो ये n बाय z हो जाएगा 0.75, ठीक है. सो आई स्किप्ड वन थिंग, आई एम रियली सॉरी, आई हैव सॉल्व्ड इट अगेन, यू कैन गो चेक इट आउट. तो ये होगा 0.75, दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If p is momentum of fastest electron ejected from a metal surface after irradiation of light having wavelength lambda, then for 1.5 p momentum of photoelectron the wavelength of light should be. Assume kinetic energy of ejected photoelectron to be very high in comparison to work function. Okay, so यहाँ पे बोला है कि there p is the momentum of the fastest electron which is ejected from a metal surface and having wavelength is given to you which is lambda, and then there's this photoelectron which has 1.5 p momentum. So you have to calculate the wavelength of light and you have to assume kinetic energy of the ejected photoelectron is very very high in comparison to the work function, which is fine, ठीक है. ये 5th question है. तो we know kinetic energy is equals to half mv square. This is for kinetic energy of photoelectron, ठीक है. हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई माइनस ई नॉट, ठीक है. नाउ हमें क्या अज्यूम करने बोला है, काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी वेरी हाई कंपेयर टू द वर्क फंक्शन विच इज़ ई नॉट. दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, ठीक है. क्योंकि बेसिकली ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये हमने निगलेक्ट कर दिया. नाउ हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है. ई की वैल्यू एच न्यू. नाउ हाउ कैन यू राइट इट, हाफ mv स्क्वायर विच इज़ काइनेटिक एनर्जी एच सी बाय लैम्डा. देन this half mv square, obviously kinetic energy can be also written in another form. I can also write it as half p square by 2m square. कैसे, p इज इक्वल्स टू एम वी, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे p स्क्वायर लिखूँगी मतलब कि m स्क्वायर v स्क्वायर,
ठीक है. देन दिस विल बी 2m. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय m करूँगी तो ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज़ अनदर लाइक दिस आई हैव रिटन टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू. बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? एच सी इंटू 2m बाय पी स्क्वायर. दैट मीन्स लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू आ गई ना. आपको बेसिकली यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है. तो हम बेसिकली हमें यहाँ पर से एक वैल्यू मिल गई, लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पी स्क्वायर. दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू p1 बाय p2 का होल स्क्वायर, सिंस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है ना. लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू p1 की वैल्यू कितना है p, और ये 1.5 p का स्क्वायर. देन लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 पी स्क्वायर, ये 10 बाय 15 स्क्वायर. 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 पी स्क्वायर बाय 9 पी स्क्वायर. ठीक है, ये पी स्क्वायर कैंसिल. फिर क्या बचा? लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 4 बाय 9 आया. ठीक है, दैट मीन्स लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 4 बाय 9 लैम्डा 1. दैट मीन्स A is the correct option. 4 by 9 lambda. Okay, so that was all about a few questions from the chapter atomic structure, and I hope you liked the video. There was a correction in one question which I've solved again. You can go and check it out. Okay, so thank you for watching, and please show some support. And I upload the videos every week, so basically chemistry tutorials every week. And if you do like this video, please give it a big fat thumbs up, and feel free to comment in my comment section regarding chemistry tutorials and doubts regarding that. And thank you for watching.